I now invite our guest of honor, Shri Kunwar Vikram Singh Ji, to kindly address the National Summit. Honorable CM Saab, Deputy CM Saab, General Shibbar Ji, CP Saab, Additional CP Saab, Varni Saab, Shekhar Ji, और आए हुए जितने भी सिक्योरिटी एक्सपर्ट हैं, सिक्योरिटी प्रोवाइडर्स हैं, मीडिया के लोग हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी थैंक श्री भास्कर रेड्डी जी गारू for inviting me to this function. I'm so grateful to Bhaskar. I'm equally grateful to all the members of CAPSI and EPSA, everybody. We have with us our Secretary General, Shri Mahesh Sharma ji also. Katti, you have already listened. It is a great moment for us, the topic being the evolution, how we've been evolutionary aspect to the physical security. Some point was touched by Katti ji. Deputy CM, I must tell you that I am one of the pioneers of starting security agencies. At my age is now 76. I have got no more than 50-year experience. We were only 5 people in the country who started this work. 5. And earlier, like Katti ji said, it was only Chaukidar job. So from Chaukidar to bring these people to this level, which is also, I consider we have reached up to the 50% of what is required. Keeping the international security standards, the challenges we face now, the kind of expertise and knowledge, efficiency, standards, we yet to walk a lot because challenges are many. You must have your clear vision where you want to take this industry to and what is the real role. As a force multiplier, we tell police that we are with you. हम आपके लिए बने हुए हैं. आप हमारा इस्तेमाल कीजिए, हमें गाइड कीजिए, हमें ट्रेंड कीजिए. और since we are the first responders, कुछ भी कहीं शहर में हो जाएगा, so our security guard is there. You have a national disaster, whatever, the first person is in front of a shop, house, jewelry shop, cinema house, wherever. You have a security guard. And the security guard must be trained to certain level of standards. ये अभी चल रहा है और यहाँ तक एवोल्यूशन का माल है कि कहाँ 5 लोग और हम लोगों ने अपने फौजी लोग इकट्ठे किए एक्स-सर्विसमैन, वी वर ऑल एक्स-सर्विसमैन. वो फौजियों को इकट्ठा करके क्योंकि बाकी फौजी को नौकरी मिलती नहीं थी तो हमने अपने सिक्योरिटी का काम शुरू कर लिया. आज डिप्टी सीएम साहब, आई एम प्राउड टू से दैट वी हैव नाउ 1 crore people, 1 crore security guards. We are the largest security force in the world. So whenever I am sent to UNO, government has been sending me to UNO to talk, to participate in the crime conferences and all that. When I go there, I tell them that we are 10 million people. Lunch time में, tea time में, काफी ministers और उनके ambassadors, they come up to me to shake hand with me. और कहते हैं हमारी तो जो देश की संख्या ही 7 मिलियन है, किसी की 3 मिलियन है, और आपके सिक्योरिटी गार्ड 10 मिलियन है. And the growth rate is 22%. We are growing at the rate of 22%. And our shortfall is 30%. Now with that growth rate, with that shortfall, that's why you will find, security guard working for 16 hours, 12 hours and all that. लोग नहीं है और लोग इसलिए भी ज़्यादा नहीं आ रहे हैं क्योंकि हमारे इस सेक्टर में you have people from the rural areas, गरीब किसान मजदूर के बच्चे इसमें आते हैं. फौजी लोग उनको ट्रेन करते हैं, उसको स्टैंडर्डाइज करते हैं और पसारा आने के बाद तो बहुत चेंजेस आई है. अभी वो चेंजेस जो पसारा एक्ट वाज ब्रॉट, आई वाज वन ऑफ द आर्किटेक्ट ऑफ पसारा एक्ट आल्सो because at that time Shivraj Patil ji was the home minister, being very close friend. So we said this sector is growing, this required to be regulated. नहीं तो ये कहीं से कहीं चला जाएगा. लोग प्राइवेट आर्म भी बना लेंगे, कुछ कर लेंगे. That's why the act was brought. Now it is being governed very well. अब काफ़ी कुछ अच्छा हो गया है. पुलिस भी
जो लाइसेंसिंग शुरू किया है, महेश जी ने बताया कि लाइसेंसिंग कितनी अच्छी हो रही है, पुलिस वेरिफिकेशन भी होने लगा है, ये सारी चीज़ें धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। तो सर जो अभी जो आने वाला एवोल्यूशनरी रोल मैं बता रहा हूँ, आई वाज जस्ट टॉकिंग टू जॉइंट सीपी साहब कि दैट इन वन ऑफ माई मीटिंग्स इन द यूनाइटेड नेशन आई थ्रू द आइडिया ऑफ पैरा पुलिस। हमने कहा जब पैरा पुलिस, पैरा मिलिट्री है, पैरामेडिक्स है, पैरा दूसरे लोग हैं, why not to have para police also? Because the present police has become terror centric. टेरर सबसे बड़ा मामला बन गया, सारी पुलिस उसी में लग गई है भी टेररिस्ट को कैसे रोका जाए। द कम्युनिटी सेफ्टी हैज टेकन ए बैक फुट। तो फॉर द सिक्योरिटी ऑफ द कम्युनिटीज यू मस्ट ट्रेन पीपल अप टू द लेवल ऑफ ए पुलिस पर्सन। हाउ यू डू इट, दैट इज अ मैकेनिज्म। वो किया जा सकता है, यूनाइटेड नेशन इसमें काम करना शुरू कर दिया है कि कैसे हम प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड्स को उस लेवल पे ले जाएं कि दैट दे कॉल पैरा पुलिस, और पुलिस का काम आसान हो जाए, हम कम्युनिटी सेफ्टी की बात करने लगे, लोगों को बचाने की और ढंग से करें एज ए प्रोफेशनल, एंड थिंग्स आर हैपनिंग वेरी वेल। लेट मी टेल यू, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज ऑल्सो गिवन रिस्पॉन्सिबिलिटी टू द BIS, द ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स। The Bureau of Indian Standard is now in the final stage of creating international standard for private security delivery system. कि जो अब स्टैंडर्ड बन चुके हैं ऑलमोस्ट, आई एम द चेयरमैन ऑफ दैट कमेटी, लेकिन उसमें सब स्टेक होल्डर को लिया गया कि आप कैसे, कौन से, व्हाट टाइप ऑफ स्टैंडर्ड्स आर रिक्वायर्ड। सो वंस दो स्टैंडर्ड्स आर सेट, यू विल फाइंड ए ह्यूज सी चेंज इन द डिलीवरी सिस्टम ऑफ सिक्योरिटी गार्ड। द डिलीवरी इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, कि आप अपना काम कैसे करते हो, आपका काम करने का ढंग कैसा है, कैसे आपका क्लाइंट ठीक है। शर्मा जी ने, कैप्टन साहब ने कहा था, संजय ने, कि और बाकी लोग भी बोलते हैं कि आपकी जो गुणवत्ता है, जो आपकी स्टैंडर्ड्स है, दैट हैज टू बी डिफाइंड। सो वंस द स्टैंडर्ड्स आर डिफाइंड, देन वी आल्सो इन द प्रोसेस ऑफ स्टैंडर्डाइजिंग द प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसीज। इट इज कॉल्ड द स्टार रेटिंग, कि अगर आपने अपनी, जैसे 5 स्टार होटल है, 2 स्टार होटल है, 3 स्टार होटल है, सिमिलरली वी आर गोइंग टू स्टैंडर्डाइज स्टार रेटिंग ऑफ द प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसी। जो अच्छी होंगी उनको 5 स्टार मिलेगा, उससे कम वाली 4 स्टार, 3 स्टार, और आपको यू विल गेट रेट एट पर योर स्टार रेटिंग। तो एक नया एवोल्यूशन जो है उसी का एक हिस्सा है जिसके अंदर ये सब चीजें आ रही है। और सर CM साहब कि दूसरा रोल जो अभी, आई टेक द फ्यू मिनट्स, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, जनरल साहब ने भी बात की, बाकी लोग भी बात कर रहे हैं, कि वेयर इज द इन्वॉल्वमेंट ऑफ द पब्लिक इनटू इट। अब सिर्फ पुलिस का काम ही नहीं है, सिक्योरिटी इज एवरीबॉडी रिस्पॉन्सिबिलिटी। और ये पब्लिक को बताने की जरूरत है कि ये देश तुम्हारा है, ये शहर तुम्हारा है, ये जगह तुम्हारी है, ये ऑफिस भी तुम्हारा है। द सेंस ऑफ ओनरशिप हैज टू बी टेकन। जब सोचोगे कि ये बिल्डिंग भी मेरी, यहां मैं काम कर रहा हूं, तो इसकी सिक्योरिटी का बंदोबस्त भी मुझे पता होना चाहिए। हाउ कैन आई प्रोटेक्ट दिस प्लेस, द सेंस ऑफ ओनरशिप। द गवर्नमेंट हैज ऑलरेडी स्टार्टेड, वी हैव स्टार्टेड सर, नेशनल सिटीजन सिक्योरिटी कल्चर। पूरे देश में नेशनल सिटीजन सिक्योरिटी कल्चर, इसकी 2 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हो चुकी है। पहली राउंड टेबल दिल्ली में हुई थी, जिसमें फौज के कोई 12 मेजर लेफ्टिनेंट जनरल्स थे, IPS ऑफिसर सर्विंग थे, रिटायर्ड थे, इंडस्ट्री के लोग थे, जजेस थे, कि जो आइडिया हमने नागरिक सुरक्षा का दिया है, इज इट ए गुड, हम कैसे पूरे देश में लोगों को इसके साथ इन्वॉल्व करें, उनको कैसे बताएं कि ये तुम्हारा भी काम है। तो उन्होंने सबने कहा कि अच्छा बात है। एक और सेकंड राउंड टेबल हुआ जिसमें सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स को बुलाया गया, उन्होंने भी कहा कि हम इसमें साथ देना चाहते हैं, क्योंकि आपके देश में यू आर फेसिंग ए ह्यूज डिफरेंट कॉन्फ्लिक्ट्स। अभी जो आप देख रहे हो ये सिक्योरिटी इशू नहीं रहने वाले, आपके पास सोशो पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट है, सोशो इकोनॉमिक कॉन्फ्लिक्ट है, आपके रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट है, कितने कॉन्फ्लिक्ट बता दूं जो आप देश में दिखाई दे रहे हैं। अगर उसको हर नागरिक ने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं समझा तो बहुत से गलत काम हो सकते हैं।
तो उसमें पब्लिक की इन्वॉल्वमेंट, एनसीसी की इन्वॉल्वमेंट, यूथ की इन्वॉल्वमेंट, आरडब्ल्यूएस की इन्वॉल्वमेंट, उसके लिए हमने एक बहुत बड़ा प्लान बनाया है. द प्लान वाज सबमिटेड टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एट द होम सेक्रेटरी अप्रूव्ड इट, देन होम सेक्रेटरी deputed a joint secretary, and BPNRD has got involved. So we are evolving a system of involving every citizen. ये देश आपका है, आपने इसको कैसे बचाना है, ये फौज का काम ही नहीं. साथ वाली कंट्री देख लो क्या होता जी. कुछ लोग इकट्ठे हुए, 20-25 हजार, पुलिस ने काम करना बंद कर दिया. लुक एट द बांग्लादेश, पुलिस ने काम करना बंद कर दिया, फौज ने कुछ नहीं किया. फौज कहती जी हमारा काम तो देश की रक्षा करना है. अरे कब करो देश की रक्षा हैं? जब आप अपने प्रधानमंत्री को नहीं बचा सकते हो, देश की रक्षा कब करोगे? सर, नेपाल में राजा के पास 80,000 फौजी थे, 80,000 आर्मी पीपल, गोरखास, 80,000. और जब वहां पे गदर हुआ, एक भी फौजी ने गोली नहीं चलाई. इतने साल से तुम राजा के गार्ड बने हो भाई, राजा को नहीं बचा सकते, तो देश का माहौल, मानसिकता और ढंग की बनती जा रही है. तो उसमें जो सिटीजन्स हैं, इनको समझाना पड़ेगा कि ऐसे मॉब का हिस्सा ना बने. देश में मुसीबतें आ सकती हैं, चैलेंजेस आ सकते हैं, डिस्पैरिटीज हैं, सब लोग सुखी नहीं हैं. लेकिन ये नहीं कि आप देश में तबाही मचा दोगे, देश का प्रशासन बदल दोगे, ड्यूली इलेक्टेड गवर्नमेंट्स को कहोगे कि हम आपको पसंद नहीं है तो अगली बार वोट में रिमूव देम. वोटिंग तो यहां रोज होती है. एक ऐसा देश है देश इंडिया, जहां वर्चुअल रोज वोटिंग होती है, पंचायत, उससे आगे कमेटियों की, एमएलए की, एमपी की, हर वक्त यहां इलेक्शन चलता है. यू हैव लॉट्स ऑफ अपॉर्चुनिटी टू सेलेक्ट योर पीपल. नो, दैट इज व्हाट इज रिक्वायर्ड सर. नो, दिस मूवमेंट जो हमने शुरू किया है, ये इस देश में एक नई सुरक्षा व्यवस्था, एक सुरक्षा जो कल्चर जिसको बोलते हैं, संस्कृति, तो उसमें मैं चाहूंगा कि आपकी जो तेलंगाना की सरकार है, तेलंगाना की रक्षा के लिए, तेलंगाना के लोगों को रक्षा करने के लिए हम आपके साथ मिलकर, बाकी स्टेट मान गई हैं. वी हैव ऑलरेडी डिस्कस विद कपल ऑफ डीजीपीज, दिल्ली के डीजीपी, आप कमिश्नर ने कहा कि हम आपके साथ हैं. पूरी पुलिस के साथ ही मिलकर करना पड़ेगा. जो पुलिस के साथ तो हमारा आपस में सिस्टम बनेगा, उसके ऊपर बताया. हमने छोटा सा एग्जाम्पल दिया था दिल्ली के सीपी साहब को. मैंने कहा जी जो हमारे सिक्योरिटी गार्ड हैं, दिल्ली में 70,000 सिक्योरिटी गार्ड हैं और 70,000 तो पुलिस वाले हैं और 5 लाख प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड. ऐसे उनको इन्वॉल्व करो. अब बता कैसे करोगे जी? मैं क्या आपको एक सिंपल एग्जांपल देता कि जब सिक्योरिटी गार्ड ट्रेवल इन बसेस, जो बस में चढ़ता है ड्यूटी जाने के लिए, वो जब बस में चढ़ेगा और जोर से आवाज देगा कि मेरा नाम सिक्योरिटी गार्ड विक्रम सिंह है, मैं इसमें ट्रेवल कर रहा हूं, अगर किसी को प्रॉब्लम पड़ती है तो मैं जहां पे हूं आपकी रक्षा के लिए. इतना कहने से मंत्री जी लोगों में गए हुए कोई आदमी हमें देख रहा है, कोई छेड़ेगा नहीं, कोई जेब नहीं काटेगा. ये सारी चीजें एक माहौल पैदा करने के लिए, यू क्रिएट, देयर आर मेनी वेज टू डू इट. सो दैट काइंड ऑफ थिंग इज रिक्वायर्ड. और वो हमने कर दिखाया है. फॉर जो इंफॉर्मेशन सर, ड्यूरिंग द कोविड टाइम, जब कोविड हुआ था तो बुरा हाल हो गया था. आपको पता, जो पहली लिस्ट निकाली गई थी एसेंशियल सर्विसेज की, उसमें प्राइवेट सिक्योरिटी का नाम नहीं था. इमीडिएटली इन द इवनिंग, किशन रेड्डी जी वाज द MO's home. He is a great good friend of mine also. उनको मिला, होम सेक्रेटरी को मिले रातों रात. नेक्स्ट डे मैंने उनको कहा कि अगर ये प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड भी एसेंशियल सर्विस में नहीं आए तो सब एजेंसियां बंद हो जाएगी, गार्ड करोगे भाग जाएंगे, तो आपके बाकी जितने भी प्राइवेट सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, हॉस्पिटल हैं, फैक्ट्रियां हैं, स्टैंड अलोन फैक्ट्रीज हैं, इनकी रक्षा कौन करेगा? पुलिस तो उसको लॉकडाउन को इम्पोज करने के लगी हुई थी. He agreed, and next day the private security agency was declared as an essential service. उससे ये हो गया कि पूरे देश में हमारे लोगों ने काम किया. And as per the statement of the Prime Minister and Home Minister,
उन्होंने कहा कि प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड ने इतना अच्छा काम किया है कि एक इंसिडेंट भी चोरी का नहीं हुआ, एक इंसिडेंट भी। तो वी वर देयर। उनको खाना पचाना, SOP हमने 5 दिन में बना ली थी, हाउ टू हैंडल कोविड। तो ये सारी चीज़ें करने की हमारी क्षमता है। हमारे पास लोग बड़े बड़े अच्छे हैं। अब तो इतने लोग जो कॉर्पोरेट सिक्योरिटी में भी, हम तो पहले कॉर्पोरेट सिक्योरिटी में हम ही लोग चला रहे थे, लेकिन नाउ वी हैव सो मेनी एक्स आर्मी ऑफिसर हु इज वर्किंग एज ए चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर्स और रिस्क मैनेजमेंट ऑफिसर्स। वी हैव थाउजेंड्स ऑफ देम। तो इन सब को इकट्ठा करके एक नए समाज की करें, जो सुरक्षित समाज हो, जो सुरक्षित भारत की एक हमारी सोच है। दैट इज व्हाट इज रिक्वायर्ड, एंड वी आर रेडी टू कोऑपरेट विद द स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट अथॉरिटी, पुलिस एंड पब्लिक ऑल्सो। वी कैन लॉन्च दिस थिंग अलॉन्ग विद द सिक्योरिटी काउंसिल जो बनी है, इन्होंने बताया मुझे। तो ये हम सब करने को तैयार हैं। मैं इतना ही कहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद, और फिर सबका धन्यवाद जिन्होंने मुझे बुलाया। थैंक यू वेरी मच।